morning to one and all. I, Ritika Rawat, would like to welcome respected Principal Sir, our HOD Sir, teachers, fellow students and our today's guest, Ms. Safalta Singh Ma'am, for the International Yoga Day celebration. Yoga has been an important part of human lives, and as they say, yoga adds years to our lives and life to our years. Its aims is to provide our mind, purify and body and soul. It maintains a connection between ourselves and the Mother Nature. Due to crisis of COVID-19, this year International Yoga Day will celebrate on digital platform. The first International Yoga Day was celebrated on 21st June 2015 across the world. And this year we are celebrating the 7th International Yoga Day. So I would like to request Principal Sir Dr. Shiv Prasad Patil Sir to speak few words for us. Okay, good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all. I hope I am audible to all. Due to some emergency need, I have to travel, and it may possible that I will be not consistent in your hearing. Please beg pardon for that. I am audible. Someone say please. Yes, sir. Yes, sir, you are. Yes, sir, you are. Okay, good. I'm very happy to be with you in this very auspicious day, and we should be very proud of this because this day is not only celebrated in India but all over the world. So yoga is now well accepted by all in the world, and hence it is our now prime responsibility also that we should be very strictly adhere with all the practices of yoga. And of course, our ancient rishis and all our gurus, yoga teachers, has proven the very importance of the yoga in our life, right? And incidentally, in this pandemic, we have realized, everyone is now very much realized the importance of yoga. So I think instead of now, this is a high time now, instead of celebrating only one day for yoga, but we should celebrate, we should be with yoga all 365 days of the year. And definitely it will give very good rewards to all of us in terms of our good health and sound mind, and thereby our strong productivity. So this is my again, you please cultivate this culture of yoga, not only with you, but in your family and around you in our society. Thereby, yourself, your family, and our society will be very strong enough. I'm very sure today's subsequent sessions will be definitely useful in this direction. And I wish my very best of wishes for this particular program. And I look forward for throughout the year, we will stick with this yoga practice. Thank you so much for organizing committee, our NSS strong and all volunteers. They have taken very good efforts to arrange this program, and I'm very sure that the success of this program is definitely will be the outcome of your great efforts. Thank you so much, and I hand over to Professor Mali, our Professor Patil, our NSS coordinator and co-coordinator, and all our team of organizing committee. Thank you so much, and have a nice day ahead. Thank you. Thank you, sir, for the valuable words. Now I would like to introduce our today's guest, Ms. Safalta Ma'am. She is graduated from Mathematics Honor from DU and currently pursuing the ELET from GIET Delhi. Her journey of yoga started without any plans. She is trained in Kathak and yoga. Last year she is graduated from Yoga Alliance called as Yogantra School.
It's amazing that where she's learned, she's working now there as the yoga instructor. I welcome you, ma'am, and I request you to please start the day. Hello, good morning. Can you all hear me and see me? Yeah? Yes, Okay, ma'am. thank you, Ritika, for the thumbs up. A very fresh morning and good morning, everyone. My name is Safalta, as Ritika has. Well, thank you so much. Ma'am, your voice is low. Very low, very low. Hello, 1, 2, 3, 4. Is it very low? Yeah, it is audible, but we can barely hear it. Barely hear it. Let me remove my mic and let's see how is it then. Okay, how is it now? It's perfect, yeah. Yes, ma'am. Perfect. It's perfect? Okay, so I don't need it now. Okay. Thank you everyone. Thank you to the organization for having me on board. Thank you to NSS committee for having me here. To the faculty members, principal sir, every member for having me here. Okay, can you all switch on your videos if you can, so it will be easy for me to communicate with you. ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ खाली लैपटॉप से बात कर रही हूँ. If it is comfortable with you. Yeah. Hi I Mitali. request everyone to please turn on cameras. Hi Arjun. Hi Harsh. Hi Gaurav. Hi Prajwal. Hi Rekha. Hi Ritika. Subhashini. Yeah? Hi. Okay. Okay. So now I feel good. I'm talking to humans now. Okay. I wish you happy International Yoga Day, everyone. This is a really nice day, as one of your teachers said कि योगा सिर्फ एक ही दिन नहीं, हमें हर दिन मनाने की कोशिश करनी चाहिए. हालांकि ये बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है. उसको accomplish करना, it's not that easy. Okay. As she has introduced, the host has introduced me that I am certified from Yoga Alliance. It is a US based organization. The certificate is internationally certified. So yes, that it is a big thing for me. जहाँ से मैंने सीखा है वहीं मैं अब सिखा रही हूँ. तो ऐसी बात रही कि कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहा, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रही, और जर्नी मेरी कुछ ऐसे ही शुरू हुई कि पता भी नहीं चला. पिछले साल लॉकडाउन में मैंने बस इट वाज लाइक बैठे हैं, सुस्त हैं, और कुछ करते हैं, योगा करते हैं, और योगा करते करते लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अलाइनमेंट्स मेरे ठीक नहीं है, इसको ढंग से समझते हैं. इट स्टार्टेड लाइक दिस. सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से शुरू हुआ है योगा इन माई लाइफ. सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या मैं अपने हाथ से ही उठा रही हूँ, क्या पैर से ही उठा रही हूँ. गोइंग इन टू पोज इज नॉट द आइडिया हियर. गोइंग हाउ इन टू द पोज एंड डूइंग हाउ द थिंग्स इज द आइडिया. So for that I started doing my journey for teacher training, and here I am in front of you. Okay. There is a saying in yoga, एक श्लोक है, युज्यते अनेना इति योगा, which means yoga is unity, and unity between the soul and the supreme power. अब आज की जनरेशन की बात करें तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट व्हाट सोल इज एंड व्हाट सुप्रीम पावर इज. यू कनेक्ट विद मी, बिकॉज कहाँ हम लोग कहाँ नई जनरेशन के लोग हैं, इनको कैसे समझेगी क्या सोल सुप्रीम पावर क्या कह रहे हैं. सो फॉर दैट आई विल रिड्यूस इट डाउन फॉर यू. इसको मैं तोड़ती हूँ आपके लिए. यूनिटी को ऐसे समझो कि दैट यूनिटी हियर, योगा वांट्स अस टू यूनाइट आवर बॉडी, आवर ब्रेथ एंड आवर ब्रेन, आवर माइंड. इन तीनों का कनेक्शन चाहता है योगा. ये तीनों आप कनेक्ट करने लगोगे तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, यू माइट समवेयर गो देयर.
और उसको समझ पाओगे. यू गेटिंग मी? सो उसको तोड़ के समझो. वी आर पीपल, वी वांट थिंग्स जो हमारे सामने हम समझ सकें. तो इतना डीप नहीं समझ आ रहा तो उसे अपने हिसाब से तोड़ लो और इस तरीके से योगा को समझने की कोशिश करो. आई थैंक टू दी ऑल द सेज, बड़े गुरुजन जिन्होंने सब योगा की प्रैक्टिस शुरू की. आई रियली रिस्पेक्ट सेज पतंजलि जिन्होंने पूरा स्क्रिप्ट करके अच्छे से लिखा है योगा और जिसको आज हम समझ पाए हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. उसमें also I want to talk about one thing which is you must have heard पतंजलि योगा, हठा योगा, पावर योगा और विन्यासा फ्लो, ऐसे कई कई आपने नाम सुने होंगे. आप लोगों को लगता है ये इतने अलग अलग क्यों हैं? योगा करो बस, इतना अलग अलग क्या है? व्हाट आर दीज? ये सब क्या है? कंफ्यूजन होती है या लाइक यू गेट कंफ्यूज? ये है क्या इतने सारे? व्हाई नॉट ओनली योगा? द थिंग हियर इज पीपल, ये सब सिर्फ ब्रांड्स हैं. दे आर ओनली ब्रांड्स हियर. ब्रांड कैसे? जब उस पर्सन ने, लेट्स टॉक अबाउट शिवानंदा जी, उन्होंने शुरू किया था अपना, वो ऋषिकेश गए और उन्होंने वहां से शुरू किया, अपनी प्रैक्टिस शुरू की. इट इज द टाइम ऑफ 19 की कुछ बात है. तो वहां पे जो द वे ही फॉलोड, द वे ही अंडरस्टूड योगा, उन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू की उस दौर में वही शुरू होने लगा, वो प्रैक्टिस चलने लगी. सो द टाइम पीरियड दे स्टूड एंड बिल्ड अप योगा, उस नाम से जाना गया, शिवानंदा योगा. Then coming forward, आज के टाइम में we are most of looking forward to power yoga. What is power yoga? It's just giving power. या power भी नहीं समझ आता तो let's understand giving speed to the process of your asanas. Mark my words. Giving speed to the process of your asanas. अगर आप सूर्य, इतना भी परेशान मत हो भाई, आपकी शक्लें सही दिख रही हैं, आप अच्छी दिख रहे हैं, सब कंफ्यूज मत हो. सब बढ़िया लग रहे हैं. चलिए, we all are very beautiful humans. ओके, कभी ऐसे अपने आप को नहीं डिग्रेड समझना है. बढ़िया लग रहे हो सब, ठीक है. ओके, where was I? कौन बता सकता है? Where was I? Power yoga. Yes, very good. I will be having this session बराबर आगे, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी. तो वहां पे अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, अंडरस्टैंड दिस. सूर्य नमस्कार का प्रोसेस यू माइट नो, देयर आर सम 12 स्टेप्स. आप ऊपर जाते हो, आर्च बैक करते हो, यू कम डाउन, यू गो डाउन ऑन द प्लैंक पोज एंड सो ऑन. इसी चीज को अगर आप स्पीड में कर दो, दैट बिकम्स योर पावर योगा. वी एक्सेप्ट, नॉट एवरीवन बट येस, नाउअडेज पीपल एक्सेप्ट जितना ज्यादा स्वेट हो, जितना ज्यादा जल्दी करे, दे कैच अ पावर योगा मोर, राइट? अब आपका हठा योगा हो गया. हठा योगा बिलीव्स कि आप आसन पहले करें, प्राणायाम बाद में करें. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो नेवर फील योर सेल्फ कन्फाइंड टू रूल्स. जो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, गो विद दैट, राइट? यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स अपने हिसाब से. हठा योगा सेज कि आप पहले आसन करो, फिर प्राणायाम करो. लेट्स ट्राई दिस. अब क्यों वो कह रहा है? रिमेंबर द मेन यूनिटी थिंग, माइंड बॉडी सोल. तो वो कह रहे हैं पहले बॉडी को यूज करो अपनी. आसन में जाओ, उसे समझो. जब तुम बॉडी में स्टेबल हो गए, देन कम टू योर ब्रेथ्स एंड अंडरस्टैंड अब सांसों के साथ क्या हो रहा है उस पोजीशन पे. अब मैंने ब्रेथ्स और बॉडी की बात शुरू कर ही दी है, तो लेट्स, प्रज्वल, आपको अगर गुस्सा आता है, आपकी सांसों का पैटर्न क्या रहता होगा? हेवी. हेवी, राइट. हेवी मतलब बड़ी फास्ट ब्रेथ रहती है. एक और चीज रहती है, बड़ी शॉर्ट रहती है, डीप नहीं होती है, शॉर्ट होती है. अंदर तक आप सांस नहीं लेते हो, जल्दी लेते हो, और वो हेवी रहती है. ओके, गौरव, जब आप सैड होते हो तो आपके क्या रहता होगा ब्रीदिंग पैटर्न? प्रोबेबली मैम थोड़ा स्लो रहता है. हम ध्यान नहीं दे पाते इस पर. बड़ा स्लो शैलो सा रहता है, समझ भी नहीं आ रहा ब्रीथ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर अटक रही होती है. डीप जा रही है पर अटक रही होती है, बड़ा स्लो रहता है. यू सी हाउ योर ब्रेथ इज कनेक्टेड टू योर इमोशन, योर ब्रेन. अगर वो उससे कनेक्टेड है, आपकी बॉडी से कनेक्टेड. एक और बात बताती हूँ, जब आप सैड रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो और बड़ा ऐसा फील करते हो कि डाउटफुल रहते हो, यू मस्ट बी फेसिंग डाउनवर्ड. आपकी नजरें ज्यादातर नीचे रहेंगी, आपका चेस्ट जो है सिंक रहेगा. यू विल बी लाइक दिस. इफ यू सी माई पोस्चर, ऐसे
ये रहेगा. अगर that can connect to your body, why not go backward? Lift up your chest, look up, smile. That will affect your brain. आपका ब्रेन स्टिमुलेट करेगा, हॉर्मोन्स भेजेगा आपके इमोशंस को. भाई नहीं, यू हैव टू फील हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. सो गाइज, मार्क दीज थिंग्स. अगर आप कभी ऐसा सैड फील कर रहे हो, सफलता को याद करना है आपने. नहीं, व्हाट शी सेड इन द सेशन, लिफ्ट अप योर चेस्ट, ओपन करो, स्माइल करो, ब्रीथ करो, सामने देखो. You will feel the change in your emotion. Then you will remember me. I hope. Right? So see how these things are connected. I am connected to yoga अभी भी. मैं unity की बात कर रही हूँ. But I am connecting it to your real life also. Okay. अभी थोड़ा सा पार्शल हो नहीं रही हूँ, बट मैं फिर भी पूछ लेती हूँ. गर्ल्स ज्यादातर ऐसा काम कर लेते हैं ना, घर में किचन वगैरह का काट लेते हैं. लड़के लोग करते हैं? You guys do it, right? करते तो बढ़िया, ठीक है, मुझे पार्शियल नहीं होना पड़ेगा. तो अगर आपने कभी फोकस किया हो, ध्यान दिया हो, अब मैं अवेयरनेस पे आ रही हूँ. आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ योगा अवेयरनेस. हमने बॉडी, माइंड, सोल, उसको ब्रेथ को कनेक्ट कर लिया. अब आई एम कमिंग टू द अवेयरनेस. माइंड पे आ रही हूँ मैं. माइंड पे काम हो रहा है कि नहीं? ठीक. हम सब्जी काटते हैं, वेरी बेसिक थिंग. सब्जी काटते हैं, कोई ऐसे टाइट चीज काट रहे हो, नींबू काट रहे हो या कोई टाइट आलू वगैरह काट रहे हो, तुमने नोटिस किया तुम्हारे दांत ऐसे दबने लगते हैं, ऐसा होने लगता है. क्यों भाई? दांत से थोड़ी काटना है, हाथों से काटना है. वाई दिस हैपेंस? इट इज ऑल इनवॉलेंट्री हो रहा है. इनवॉलेंट्री. यू आर नॉट सपोज टू डू दिस. अगली बार काटोगे इसको, जॉ को रिलैक्स रखने की कोशिश करना. वॉट वी नीड, जिस मसल का जहां यूज है उसे वहीं यूज करना है. ओके. अगर आप सोच रहे हो मैं तो अरे ये तो सीधा घर पे पहुंच गए आज सेशन में योगा के बारे में, थोड़ा हम तो सोच रहे थे हिस्ट्री बताएंगे और बड़े गुरुजन की बात करेंगे. आई डोंट थिंक यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? अब वो अपना योगदान देके हमें चले गए, हमें पास ऑन करना है उसे अपनी रियल कंडीशंस के हिसाब से, रियल सिचुएशंस के हिसाब से, राइट? तो मैं उसके बारे में क्या बात करूं, आप गूगल कर लेंगे. तो फिर मेरी तो जरूरत है नहीं. मेरी कहाँ जरूरत है? कनेक्शन में जरूरत है, राइट? सो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, इफ यू विल बी डूइंग एनीथिंग, इवन ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू द टीचर्स हु आर हियर, फैकल्टी मेंबर्स, आप लोग भी घर में ऐसा कोई काम करें जिसमें आपका जो मसल का जरूरत है उसके अलावा कुछ और यूज कर रहे हो, उसे रोक दो. वहीं योर एनर्जी इज कंज्यूमिंग समवेयर एल्स. मत करो. योर आर्म इज नीडेड टू कट योर एनीथिंग योर वर्क इज डूइंग, तो वहां उस पर काम करो, राइट? सो दिस इज द टॉकिंग अबाउट कैसा योगा आपका रियल लाइफ में आता है, कैसे आप सिर्फ आसन और प्राणायाम और इन सब से कनेक्टेड नहीं है, मेडिटेशन से सिर्फ इन सब से कनेक्टेड नहीं है. हाउ यू ब्रिंग योर अवेयरनेस एंड कनेक्ट योर ब्रेन, बॉडी एंड ब्रेथ विद योर डेली लाइफ प्रैक्टिस. You getting me? Give me a thumbs up with your hand, real hand, if you're getting it. Yeah, fine. Thank you. चलिए, इसकी बात आ गई है. I have received some of the pictures. आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, अपने योगा आसन परफॉर्म किए थे. Yes, some of you have performed your yoga asans. I was very happy. कितना सारा पार्टिसिपेशन था. You guys were involving, coming to for the day, coming together. Unity was there. चाहे जबरदस्ती करना पड़ा हो या फिर मन से किया हो, but you guys were together. We came together, right? I felt happy that I received so many, pictures. ठीक. अब उसमें मैंने जो देखा है मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी. ओके? थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं. कमिंग टू व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ टू डू. आप योगा समझ गए, आप उसका यूनिटी एस्पेक्ट समझ गए, आप उसको डेली लाइफ में ले आए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, राइट? आई हैव सीन इन दोज कि आप भुजंग आसन में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे. भुजंग आसन और देयर इज दिस पोज अपवर्ड फेसिंग डॉग. अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड भुजंग आसन. अगर हो सकता है आपने पहले सर्च किया हो इन दोनों में से होता कौन सा है, कैसा होता है, तो आपने देखा होगा पूरा बॉडी जो लिफ्ट अप हो रहा है उसको भुजंग आसन लिखा हुआ है. बट नो, दैट इज ऊर्ध्वमुख श्वान आसन विच इज अपवर्ड फेसिंग डॉग. उसमें क्या होता है, आपके आर्म्स, कलाई और शोल्डर, इस पे ज्यादा आपका वेट रहता है.
भुजंग आसन में आपका सिर्फ बैक मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है. लेट मी शो यू वंस. ओके, अभी मेरे को बताओ, मेरा मैट दिख रहा है? दिख रहा है मेरा मैट? ठीक है, मैं पीछे जाऊंगी, हो सकता है मेरी वॉइस कम हो जाए क्योंकि मैं इसकी लैपटॉप से वॉइस पे बात कर रही हूँ. सो फर्स्ट आई विल बी शोइंग यू भुजंग आसन. In that, my chest is expanding in both of the asanas, but the process is different. The weight shift and the holding, जिसको body जो hold कर रहा है वो muscle वो different है. भुजंग आसन में मेरा back of the muscle होगा. I'll show you. And I will be just lifting with my back. ये. This is your भुजंग आसन. Just this much. Sit back muscles through you. This. If you take your hands here, open your legs, and you lift yourself up. This is upward facing dog. You see the difference? ये और ये. So there is a difference between आपका कौन सा मसल कहाँ यूज हो रहा है. ठीक. अब अपवर्ड फेसिंग डॉग में यू मस्ट हैव सीन मेरा नेक पूरा लंबा था, स्ट्रॉन्ग था, शोल्डर्स ऐसे लॉक नहीं हो रहा था. बट सम ऑफ द पिक्चर्स आई सॉ, ये पूरा कंधा ऐसे जा रहा है, गर्दन बंद हो रही है. सांस कहां से लोगे? स्ट्रॉन्ग करो, गर्दन लंबी करो. अगली बार जब इसको प्रैक्टिस करोगे गर्दन लंबी रखना, शोल्डर स्ट्रॉन्ग रखना. राइट? सी हमारी दिस इज नॉट अ फॉल्ट, ये हमारी आदत में आ चुका है, डेली लाइफ आदत में. हम लोग जैसे खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसका जो तरीका है, सलीका है, वो चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज यूजुअल कनेक्टिंग टू द रियल लाइफ. हमारी रियल लाइफ में जो चीजें आती जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस डिवाइस विच आई एम टॉकिंग टू यू, जिसके थ्रू अब वो आगे रखी है, मेरे को ऐसे बात करना पड़ रहा है, थोड़ा झुकना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है. दो ऑल्सो आई एम ट्राइंग, जब मैं आगे जाऊं मैं अपनी बैक सीधी रख रही हूँ, अलाइंड रख रही हूं. पर क्या होता है हमारे साथ? दिस इज माई सेल फोन. वी गो लाइक दिस. देख लो गर्दन, ये ऐसे काम करते हैं और झुक जाते हैं, उसमें घुसे ही जा रहे हैं. दिस इज द रियल स्पेस माई फ्रेंड्स. इसको उठाओ, वर्क लाइक दिस. नहीं कर सकते ऐसे, कीप इट समवेयर इन फ्रंट ऑफ यू. राइट? सो ब्रिंग चेंजेस. आओ अभी बैठना सीखते हैं, आ जाओ. आई टेल यू हाउ टू सिट प्रॉपरली. कैन यू कीप योर डिवाइस थोड़ा सा दूर अपना, और डिवाइस से ऐसे हाथ हटा लो. यू मस्ट बी लाइक, क्या हम इस बैठना सिखा रही हैं? सीखना पड़ेगा, सीखो. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू वाइल सिटिंग, आई टेल यू वेयर टू सिट. बैठना किस पे होता है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में देयर इज अ बोन कॉल्ड सिट बोन, उस पे बैठना होता है. वेयर इज दैट सिट बोन? इट इज इट इज इन बिटवीन योर बटक्स. अब वो हम फील नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? इफ आई कम बैक, ये जो बटक्स है ये हमें ना नीचे लीन कर देते हैं, सारी स्किन नीचे फोल्ड हो जाती है. वेन यू हैव टू सिट, अगर आप अभी क्रॉस लेग बैठे हुए हो, एवरीबॉडी जस्ट स्प्लिट योर बटक्स अपार्ट. राइट बटक राइट, लेफ्ट बटक लेफ्ट. शर्माना नहीं है कुछ, अपनी बॉडी है. राइट बटक राइट, लेफ्ट बटक लेफ्ट. यू डू दिस. आ गए आप लोग सिटिंग पोजिशन पे. अब यहाँ पे जस्ट फोल्ड योर सेल्फ फॉरवर्ड, सामने फोल्ड करो. नाउ स्लोली कम बैक एंड फील दोज बोन्स इनसाइड. ये नीचे बोन्स फील हो गए, जहां तुम्हें वो बोन्स फील हो जाए, दैट इज योर सिट बोन. नाउ प्रेस दैट सिट बोन ऑन द मैट एंड मेक योर स्पाइन स्ट्रेट. अगर देखो मैं उस सिट बोन को छोड़ दूं तो ये हो रहा है. अगर मैं उस सिट बोन को पकड़ के प्रेस कर दूं, ये हो रहा है. मैं कमर सीधी नहीं कर रही, सिर्फ सिट बोन को प्रेस कर रही हूँ. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? ट्राई बोथ द थिंग्स. उन सिट बोन को छोड़ दो, अब सिट बोन को प्रेस करो. ये सिट बोन्स ये प्रेस करो, यू विल ऑटोमेटिकली लिफ्ट. सो व्हाट वी आर फॉरगेटिंग इज बैठना कहाँ और किस पे है. राइट? सिट बोन्स पे बैठ गए, सीधा हो गए. अभी कमर का क्या, अब आगे का क्या प्रोसेस है? ये जो शोल्डर्स है ना, यहाँ बोन्स है हमारी, इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स या स्कैपुला. व्हेन वी सिट or stand, we have to keep our shoulder blades back.
ये शोल्डर ब्लेड्स बैक, यू सी द डिफरेंस, शोल्डर ब्लेड्स बैक। अब इतना बैक करोगे तो हो सकता है कमर बहुत ज्यादा आर्च करे, उसके लिए क्या करना है, टक योर नेवल इन, ये। अब मेरा कमर एकदम फ्लैट और सीधा है। तीनों चीज प्रोसेस करो, सिट बोन्स पे बैठो, शोल्डर ब्लेड्स बैक करो, नेवल टक करो अंदर, राइट। अब नाउ व्हाट अबाउट माय नेक, कमर तो सीधा हो गया मैम, कमर तो सीधा हो गया हमारा, गर्दन का क्या करना है, गर्दन अगर तुम्हारा ऐसे है, ये जो ईयर्स होते हैं ना, कान, इनको अपनी शोल्डर की लाइन में लाना है, ये यू सी माई ईयर आर इन लाइन विद माई शोल्डर। अब इसको इतना ज्यादा भी नहीं करना कि बाहर निकल जाए, आगे भी नहीं करना। गेट अवेयर ऑफ योर बॉडी, आपका बॉडी कहाँ जा रहा है, तो वो अगर आप ध्यान से करोगे बिना देखे अपने आप को समझते हुए, तो आपका ब्रेन, बॉडी, ब्रेथ सब कनेक्ट होगा। दिस इज हाउ यू सेट। अब इसमें ज्यादा देर तो बैठ नहीं सकते, क्या बता रहे हो आप, इतना ज्यादा देर बैठना तो आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। आप डेली चलते हो, बिना सोचे चलते हो ना, पैरों को बताना थोड़ी पड़ता है, राइट पैर आगे पड़ जा, लेफ्ट पैर आगे पड़ जा, उसको इतनी आदत होगी है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट अ लॉट। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है, और उसकी जरूरत हमें पता है। इसकी जरूरत हमें तब महसूस होगी जब हम बड़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, और तब तक उसे आदत में लाते लाते और हमारी उम्र निकल जाएगी। तो क्यों ना अभी से शुरू करें। अभी आपको लगता है अभी मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, वॉल यूज कर लो, वॉल पे तीनों एक्शंस लो, योर सिट बोन्स, बटक्स को स्प्लिट करके सिट बोन्स, ये नेवल टक्ड इन, शोल्डर ब्लेड्स बैक, एंड योर चिन पैरेलल टू द, ये ठीक, बैठ गए, चलो बैठ गए। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, हम बैठ तो गए पर आजकल तो सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम ऐसे बैठेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, रहेगा कि नहीं बढ़िया, ऐसे बैठोगे थोड़ा, इसमें बढ़िया क्या रहेगा। आई टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिट, और ऐसे बैठे रहते हो पूरे टाइम, काम करते रहते हो, काम करते करते अवेयरनेस चली जाती है, ऐसे बेंड हो जाते हो, क्या फर्क होता है उसमें, क्या यू नो व्हाट यू आर लूजिंग योर फ्रंटल मसल्स, वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट होनी सीख जाएगी। आपको पता है क्या होता है, यू नो आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, तो उसमें आई फील भी, और ऐसा मेरे को रिप्लाई भी आते हैं उन लोगों से कि आई एम फीलिंग पेन हियर सफलता, आप मेरे को जब ऐसे स्ट्रेच करा रहे हो मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को यहाँ पीछे स्कैपुला में यहाँ पेन हो रहा है। क्यों होता है पेन? क्योंकि इन मसल्स की आदत खत्म हो गई है स्ट्रेच होने की, वो बैक मसल्स की आदत खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट होने की और आपके शोल्डर ब्लेड्स पीछे रखने की, तो उनमें यहाँ इसलिए वो खिंचती हैं तो थोड़ा पेन होता है। अगर आपके यहाँ ये कॉलर बोन होती है ना, इस जगह पेन हो, या आप सीधे बैठे बैठे आज के बाद सेशन में आपको पेन हो पीछे वो शोल्डर ब्लेड के पास, सो दैट इज फाइन, होगा वो। क्यों? क्योंकि आदत नहीं होती है। ठीक है, लेट मी शो यू वीडियो, रुको मैं आपको दिखाती हूँ बैठते हुए होता क्या है। What happens to your lower spine? You know where your lower spine is? Here, ये वाला portion. This is your lower spine. We call it lumbar spine, to be specific. उसके साथ क्या होता है? Let me show you. While sitting, मेरे को बताना कोई स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं मेरा, हो रहा है? Yes. Yeah, you see this person? अभी देखो, इसका जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो एकदम इसके ऑलमोस्ट आंखों के सामने है। सो ही इज सिटिंग, ही और लेट्स कॉल इट अ ह्यूमन बॉडी इज सिटिंग वेरी स्ट्रेट। तुम लोगों को मैं यहाँ ले आती हूँ। अब नाउ आई एम प्लेइंग, अब इसका लैपटॉप का स्क्रीन हो जाएगा नीचे, नहीं किया इसने नीचे, पता नहीं क्या हो रहा है, पर ये देखो नीचे हो गया और बेंड हो गया, गर्दन देखिए इसकी बेंड हो गई जैसे नीचे आया और धंसता जा रहा है। ये अनवॉलेंट्री होता है, हम चाह नहीं रहे हैं बट इट हैपेंस। आज की सेशन के बाद से ना अपने में अवेयरनेस लाने की कोशिश करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी दिस हैपेंस, और फिर आपका ये एरिया, ये पीछे का शोल्डर का ये मसल्स पूरा और ये लोअर बैक, ये पूरा पेन करता है। देखो इसको भी दर्द होगा। सी इट्स पेनिंग। मैं ऐसे फन ऐसे हंसती रहती हूँ सेशन में, तुम लोग भी हंसते रहा करो। ये देखो क्या होगा इसकी स्पाइन का भी, ये पूरी खींच ली। यू सी दिस,
सी दिस लिगामेंट्स पूरे खिंच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खिंच रहे हैं. इट्स फाइन फॉर द सम टाइम, प्रैक्टिस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना इट्स फाइन, बट कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती. यू ऑल नो दैट. पूरा वेट, पूरे यहाँ जितनी भी ऑर्गन्स होंगी ना, पूरा सबका वेट इस पे जाएगा, आपकी बैक ऑफ द मसल पे, इस पे. और हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा. दिस इज मोर डीप. इसके बीच के लिगामेंट्स जो हैं वो भी उस पे प्रेशर पड़ता है. यू सी दिस इज अ लंबर स्पाइन. ये देखो मुड़ गई लंबर स्पाइन. यहाँ जितने भी ऑर्गन्स है सब धक्का देंगे, इसके ऊपर और प्रेशर क्रिएट करेंगे. यहाँ की ये जो वर्टेब्राज है पूरे डिफरेंस होगी. इनकी देख रहे हो डिस्क के बीच में गैप होता जा रहा है, ब्लैक ब्लैक और गैप होता जा रहा है. ऊपर वाली स्पाइन यहाँ गैप होता जा रहा है. कितना एक्सट्रीम फ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ की डिस्क देखो पूरा प्रेस हो रही है. फिर हम बोलते हैं हमें स्लिप डिस्क हो गई. क्यों हो रही है? हम ही तो कर रहे हैं ये. हम बस अंदर हमने कभी झांका नहीं अपने. What happens to your muscle? You see this is hamstring. ये देखो चेस्ट सिंक हो गई आपकी. I'll show you once again. The last portion. I hope you guys are with me because I can't see you right now. आप लोग सोच रहे हो सिर्फ कमर खराब होती है. ये वाली जो मसल्स है ना हमारी हैमस्ट्रिंग, थाई की पीछे की मसल. Are you guys with me? Somebody say yes or no. Yes, we are. Yes. ओके. सो ये थाई की नीचे वाली मसल देखो, हैमस्ट्रिंग. अगर तुम पूरे टाइम बैठे रहोगे घर में, कुछ और काम नहीं करोगे, कुछ आदत, मैं ये नहीं कह रही योगा करो, कुछ और एक्टिविटी नहीं करोगे, ये जो मसल है ना नीचे वाली, ये इतनी रहने की इसको आदत पड़ जाएगी, इसको हैमस्ट्रिंग को खींचने की आदत रह जाएगी इसकी. सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट होना सीख चुकी है, इतना ही छोटी रहेगी. ये वाली काफ वाली मसल देख रहे हो, ये भी छोटा रहना सीख जाएगी. जैसे इसको स्ट्रेच करने की कभी जरूरत पड़ जाएगी ना, तुम्हें कोई काम करना पड़ जाएगा, ऊपर से ऊंचा सामान उतारना है, रखना है, नीचे रखना है, तब तुम्हें इसमें पेन आएगा अचानक से. फिर बोलोगे मेरे तो दर्द हो गया. वी आर डूइंग दिस टू आवरसेल्फ. द ओनली थिंग इज हमने कभी इतना अंदर से ऐसे झांका नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे साथ. ये फ्रंटल सारी मसल्स ये देखो श्रिंक हो गई. पूरा इसका आगे की मसल श्रिंक हो गई, रिब केज श्रिंक हो गया, चेस्ट पूरा श्रिंक हो गया. अब सोचो सिर्फ मसल्स की बात नहीं, तुम्हारे लंग्स कैसे हो रहे होंगे इस टाइम. पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तुम्हारे लंग्स, राइट. व्हेन यू बेंड योरसेल्फ, ऐसे चेस्ट श्रिंक कर रहे हो, सिर्फ मसल्स नहीं तुम्हारे लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. और फिर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है. As one of the teacher also mentioned कि आज के टाइम में it is so important to keep yourself, aware of yourself. ये कर रहे हैं. मैं जैसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे आप लोगों को बोलना चाहिए मैम आप कैसे बैठे हो, क्या बैठे हो आप, मत बात करो हमसे ऐसे बैठे हो. तो lift yourself up. You will feel good. Your lungs will expand. ये तो भी बैठने की बात. सीख गए बैठना? आज बैठना सीख गए आप लोग? कैसे बैठना अगली बार, राइट? अगर आपको और पेन हो रहा है, आपकी कमर सीधी नहीं हो पा रही, मैं एक और टिप दे देती हूँ आपको. कीप अंडरनीथ समथिंग योर बटक. अपने बटक के नीचे. हेलो आकाश, आप अभी आए हो आई गेस. अपने बटक के नीचे कुछ रख दो. ठीक, क्या रख दो? पिलो रख दो. फिर अपने बटक स्प्रेड करो एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर. दिस इज सम ट्रिक्स जिससे आपकी कमर सीधी नहीं होगी, तो ये इसको यूज कर सकते हो. कमिंग बैक टू स्टैंडिंग पोस्चर. स्टैंडिंग में कैसा होता है? स्टैंडिंग में आई विल मेक यू स्टैंड और आई विल मेक यू फील समथिंग जो हमें करना होता है. अभी भी मैं अपनी लोअर बैक पे ही स्टिक दूं, लोअर बैक की बात करूंगी मैं, क्योंकि हमें लोअर बैक पेन ज्यादा आता है. एग्री करते हो? बड़ों को भी अरे मेरी कमर दुख रही है, क्यों दुख रही है वो फिर से देखेंगे. अभी तो तुमने देखा जब फ्लेक्शन हो गया, पीछे मोड़ लिया, बोन्स पूरी स्ट्रेच हो गई, वहां की जितनी भी डिस्क है दैट इज गिविंग स्पेस, आगे वाली डिस्क पूरी प्रेस हो रही है, पीछे मसल्स पे वेट हो रहा है. यू आर गेटिंग द एनाटॉमी नाउ. बाहर के स्टूडेंट्स नहीं हैं बट स्टिल वी कैन रिलेट, राइट? अब स्टैंडिंग में क्या होगा? स्टैंडिंग में व्हाट वी डू, आई विल टेल यू. व्हाट वी हैव टू डू मैं बताती हूँ. हम लोग क्या करते हैं स्पेशली यूजुअली ना, देखो ये तो मैं वो नहीं करूंगी पार्शियलिटी, पर हाँ भाई गर्ल्स के साथ ऐसा होता है. वी यूजुअली स्टैंड लाइक दिस. ये बटक्स को ऐसे पीछे छोड़ देते हैं हम लोग, ये खड़े होते हैं. ये कमर छोटी हो रही है हमारी, गड़बड़ है, सब फ्यूचर के लिए खराब हो जाएगा, बहुत दर्द होगा यहाँ पे. करना क्या है इसको करेक्ट करने के लिए?
बटक्स को रोल डाउन करना है और नेवल टक करनी है. यू सी द डिफरेंस, यू सी द लाइनिंग ऑफ माई लोअर. ये कैसे टेढ़ी थी और मैंने इसको सीधा किया, स्पाइन सीधी होगी. डू यू सी द डिफरेंस? दैट इज नोन एज रोलिंग माई बटक डाउन एंड टकिंग माई नेवल इन. अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आई विल टेल यू अ वे टू डू इट. अपने हाथ रखेंगे ये हिप जॉइंट्स में. दिस इज द जॉइंट. ये मॉडल नहीं बनेंगे अभी, शक्तिमान बनेंगे अभी. यहाँ रखेंगे हाथ. ये जो जॉइंट होता है, यू सी दिस जॉइंट, यहाँ रखेंगे. यहाँ हाथ रखने के बाद रोल योर बटक डाउन. यू सी, छोड़ा, रोलिंग माई बटक डाउन. ट्राई दिस एवरीवन. ये ट्राई करो अभी खड़े होके. गिव मी अ साइड पॉस्चर. शो मी योर राइट आर्म. राइट आर्म मेरी तरफ फेस करो एंड हैंड्स ऑन योर हिप जॉइंट्स एंड ट्राई टू रोल योर बटक डाउन. करो करो, ट्राई करो. खड़े होना सीखते हैं, आ जाओ. इफ एनी फैकल्टी मेंबर्स इज ज्वाइंड अस, कोई भी ज्वाइंट है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो भी ट्राई करे अपना, अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो. कम ऑन, हैंड्स ऑन योर बटक्स, रोल योर बटक डाउन और नेवल को अंदर टक करो. ट्राई करो. मान्या, मनायता, सॉरी, मान्यता. हाँ, नाउ आई एम गेटिंग अ नेम. मान्यता. अपना बटक्स का रोल डाउन करो, नेवल टक करो. हाँ रितिका, ट्राई करो. कर पा रहे हो? बटक्स को रोल डाउन कर, नेवल नीचे अंदर टक कर. कैसे करना है? ये यहाँ हाथ रख, बटक्स को रोल डाउन कर, नेवल टक कर. अपने आप यू विल फील स्पेस हियर. लंबर स्पाइन लंबी हो जाएगी. यहाँ देख, यहाँ छोटी है लंबर स्पाइन. बटक्स रोल डाउन किया, नेवल टक किया, ये लंबी हो गई. यू विल फील लेंथ हियर. ट्राई कर पा रहे हो अपूर्वा? करो ट्राई. हाँ हाँ, मान्यता, गुड. और बटक नीचे रोल कर, नेवल को अंदर टक कर. बटक्स को नीचे घुमा, नेवल को अंदर कर. यू आर फीलिंग द डिफरेंस गर्ल्स? मुझे तो लग रहा है आप ही लोग कर रहे हो ट्राई. आप ही लोग को स्वस्थ रहना है. गुड. यू फील द डिफरेंस? दैट इज हाउ वी हैव टू ब्रिंग आवर सेल्स इन लाइफ. ऐसे खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है. अब आप जब खड़े होके कोई भी आसन परफॉर्म करोगे, इवन इफ इट इज योर ट्री पोज और एनी पोज, यू हैव टू मेंटेन दिस पोस्चर. अगर मैं ऐसे खड़े होके अपना आसन करूंगी, ये पीछे छोड़ रखा है सारा, तो बात ही नहीं है ना, मसल्स इन्वॉल्व नहीं हुई. ये बटक रोल डाउन करना है, स्ट्रॉन्ग फील करना है, चेस्ट लिफ्ट करनी है, तभी तो आप एक वृक्ष हो. राइट? सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एवरी आसन. हर आसन में देयर इज अ कनेक्शन. यू वॉन्ट टू सी दिस. इफ ये स्टैंडिंग पोस्चर का स्पाइन रोटेशन तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देती हूँ. वॉट हैपन्स टू योर स्पाइन जब आप खड़े होके करते हो. ये देखो, सी, दिस इज योर स्पाइन. जब आपके बटक पूरे पीछे ऐसे पीछे रहते हैं और ये स्पाइन छोटी रहती है. अभी भी कुछ नहीं है, अभी तो इससे ज्यादा कर लेते हैं लोग. ये होती है टेल बोन. ये जो येलो येलो है ना, दिस इज टेल बोन. ये पूरी पीछे उठी हुई है. ये नेम वेम छोड़ो, ये समझो, ये पूरा छोटा हो रखा है बैक स्पाइन. अभी मैं इसको प्ले करती हूँ. ये देखो, और छोटी कर ली. सी, वाई विल नॉट हैव पेन इन आवर लोअर बैक? आना ही है पेन. अब देखो करना क्या है. जो मैंने तुम्हें एक्शन समझाया उससे होगा क्या, ये देखो. जैसी वो एक्शन तुम लोगे, ये देखो, हुई बैक सीधी हुई, कमर सीधी हुई. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. ये टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे हम बटक्स नीचे लोअर डाउन करते हैं, स्पाइन ये वाला पूरा लंबा हो जाता है. एवरी वर्टिब्रा इज हैविंग इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर स्पेस. आपको पता है, ये जब स्पाइन और नीचे से ब्लॉक हो जाती है ना, ये, लेट मी टेल यू मोर टेक्निकल थिंग्स. ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी वरना बोलोगे अरे तो ज्यादा ही हो गया. ये इन बोन्स के बीच में से हमारी नर्व्स निकली होती हैं. वो सारी नर्व्स जितना ज्यादा तुम ब्लॉक करोगे उसे, उनमें ब्लॉकेज पैदा होगी और तुम्हारे फर्दर और पेन पैदा होगा. फिर हम बोलते हैं ना हमारे एक पैर में दर्द हो रहा है, नस खड़ी हो गई, ऐसा कुछ बोलते हैं. यू गाइज समटाइम्स फील दैट. एक पे हम बोलते हैं एक पैर में नस खड़ी हो गई. किसने की है? वो हमने की है ना. हमने उसका मेन पाथ ही ब्लॉक कर दिया है, तो आगे तो वो ब्लॉक हो ही जाएगी. राइट? आर यू गेटिंग द टेक्निकल थिंग्स? अभी सिर्फ खड़ा होना और बैठना बताया मैंने, अभी ज्यादा तो डीप गई नहीं हूँ आसनों में. तो इन एक्शंस को फॉलो करके तुम्हें अपने आसन आगे प्रोसीड करने. मान्यता, बच्चे खड़े बैठ जा. कब तक खड़ी रहेगी?
ठीक है, तो इन एक्शंस को फॉलो करके आपको अपने आसन प्रोसीड करने हैं। ठीक है, अगर बात रही आपके बैक बेंड की, फॉरवर्ड बेंड की, ये बटक को यूज करना है। स्पाइन का काम नहीं है फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड में, आपके बटक का काम है। बटक में किसका काम है? हिप जॉइंट का काम है। उस जॉइंट का काम है ये, इट इज जॉइंट्स आर लाइक दिस, ये फोल्ड करेगा। मेरे हाथ ने नहीं मेरे को मोड़ा है, इस जॉइंट की वजह से मैं फोल्ड हुई हूँ, इस जॉइंट की वजह से मैं खुली हूँ। यू गेटिंग दिस? बट हम क्या करते हैं, ये जॉइंट को इमोबाइल रखते हैं, पूरा मूव ही नहीं कर रहा जॉइंट। कमर मोड़ ली, कमर, ठीक। तो जाना कैसे? फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड। जब भी आगे प्रोसेस जाओगे आसन में, फॉलो दिस। आगे जाना है तो हिप ये, इसको ऊपर, ये बटक को ऊपर फोल्ड करते रहो। मैं आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं हिप जॉइंट मोड़ रही हूँ। आई एम ऑटोमेटिकली गोइंग फॉरवर्ड। तुम्हें फॉरवर्ड आसन करना है, यू विल फॉलो दिस हिप जॉइंट। यू वांट टू गो बैक, ये और बटक को रोल करते रहो, रोल करते रहो, आगे धक्का दे रहे हो, चेस्ट में अपने आप पीछे जा रही हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। सो वी हैव टू ट्राई टू शिफ्ट आवर अवेयरनेस। स्पाइन हमारा सपोर्ट है, पूरे टाइम के लिए लाइफ सपोर्ट है, तुम्हारा साथी है, उसके ऊपर बोझ नहीं डालना। बोझ लेने के लिए कौन है? मसल्स है। मूवमेंट के लिए कौन है? जॉइंट्स है। यू विल रिमेम्बर दिस। बोझ कौन लेंगी? मसल्स। और मूवमेंट कौन देगा? जॉइंट्स। नेवर गिव बोझ टू योर जॉइंट्स। ये करके नहीं बैठना घर में, ये करके बैठना है। क्यों आते हैं हमें यहाँ पेन? इसीलिए आता है। ये जॉइंट का काम थोड़ी है, वहां तो मसल है ही नहीं, कौन संभालेगा तुम्हारा वेट? ये मसल संभालेंगे तुम्हारी आगे पीछे की पूरी। हम ऐसे करके टीवी देखते हैं, ये करके देखो सांस कैसे आएगी तुम्हें। मसल्स को इन्वॉल्व करो। यू विल फील द डिफरेंस एट होम। ट्राई करोगे? या यू विल गाइस ट्राई दिस एट होम, डेली लाइफ में अपना, टीवी देखते हुए, कोई भी काम करते हुए, राइट? आई एम नॉट सेइंग यू टू प्रैक्टिस डेली योगा। जब तुम ये करने लगोगे, अपने आप तुम्हारा मन करेगा कि अब मैं और योगा में जाता हूँ या जाती हूँ। पहले उसे इतना अवेयरनेस लाना शुरू करो। ओके, यू गेटिंग मी? चलो ठीक है, अभी आई विल बी प्रैक्टिसिंग, मान्यता शी सो क्यूट, विल बी प्रैक्टिसिंग सम, थोड़ा सा हम कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा आ जाए योगा में और अंदर डेली लाइफ का प्रैक्टिस करके आ जाते हैं। सो सिट स्ट्रेट, जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस किया था। स्प्लिट योर बटक्स अपार्ट, टक योर नेवल इन, शोल्डर ब्लेड्स बैक, चेस्ट को नेवल से दूर करो, फ्रंटल बॉडी को स्ट्रेच करो, शोल्डर ब्लेड्स बैक। अगर आपके पास दीवार है तो दीवार पे पूरा टच हो जाना। सो योर लोअर बैक, योर शोल्डर्स एंड योर हेड विल बी टचिंग द वॉल, एज आई कैन सी अर्जुन के यहाँ पे है, राइट? तो अभी जैसे तुम्हारा लैपटॉप नीचे, तुम्हें नीचे करना पड़ रहा है अर्जुन, नहीं, आई लेवल पे देखना है आपने, ठीक है? तो अपने डिवाइसेस को स्टिमुलेट मत, ओके, अपने डिवाइसेस को, अपने मूवमेंट को स्टिमुलेट मत करने दो पीपल। यू आर द वन हु विल कंट्रोल योर बॉडी, राइट? डोंट मेक दीज डिवाइसेस एंड द सराउंडिंग्स कंट्रोल यू। उनकी वजह से आप ऐसे हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो, ये टीवी की वजह से मैं ऐसा हो रहा हूँ। लिसन टू दिस थिंग हियर। इसकी वजह से आप मेरे सामने हो अभी, मैं आपके सामने हूँ अभी, राइट? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ सम प्राणायाम प्रैक्टिस। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस विद मी। आई वोंट बी टीचिंग यू अनुलोम विलोम, कपाल भाती, नहीं। हम वो सीखेंगे जो हमें नहीं पता है। वी विल बी लर्निंग हाउ टू ब्रीथ। आज तुम सोचोगे ये तो बस बैठना, खड़ा होना, सांस लेना सिखा रही है, तो हमें आता है। पर अभी डिफरेंस देख रहे हो, कितनी चीजें हम मिस कर रहे हैं। अभी मैं तुम्हें सांस लेने का बताती हूँ क्या हम मिस करते हैं। आगे बैठ गए। इमेजिन पीपल, दिस इज योर लंग, दिस, ये लंग की तरह है नहीं। मैं ये क्यों लेके आई हूँ? ये 3D स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स 3D हैं। इसका विड्थ भी है, लेंथ भी है। यू सी, मोटापा, ये विड्थ है, ये लेंथ है, और ये हाइट है इसकी, मोटा है इतना, ठीक है? लंग्स भी ऐसे होते हैं। सोचो अब, अगर मैं इस लंग को हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करूं तो एक्सपेंशन अच्छा होगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। पर हर उसमें कैसे एक्सपैंड करेंगे? आई विल टेल यू हाउ टू लेंथन योर लंग्स। उसके लिए कीप योर राइट हैंड और एनी ऑफ योर हैंड ऑन योर बेली,
अपने यहाँ पेट पे रखो, ठीक। When you will inhale, you will fill up your stomach and expand. When you will exhale, contract. Inhale, exhale, contract. Inhale, expand. Exhale, contract. Inhale, expand. Exhale, contract. You know what are we doing, friends? यहाँ जो डायफ्राम है हम एक्सपैंड करके उसको स्पेस दे रहे हैं लेंथन होने के लिए. So we are lengthening our lungs. Let's practice 2 more times. Inhale, expand. Exhale, contract. कमर सीधी रखो. Inhale, expand. Exhale, contract. Beautiful. Now we know how to lengthen our lungs. अब ये breath wise कैसे खोलें? मैम ये तो नहीं पता हमें. ये कैसे खोलेंगे? I will tell you how to do that. Right hand लो, अपने रिब केज पे रखो. यहाँ लेफ्ट भी रख लो. ये रिब केज फील कर पा रहे हो? कैन यू फील योर रिब केज हियर? फील कर पा रहे हो? अभी जब आप इनहेल करोगे यू हैव टू ट्राई टू एक्सपैंड योर लंग्स राइट एंड लेफ्ट साइड. पेट को इन्वॉल्व मत करो, सिर्फ लंग्स को राइट लेफ्ट एक्सपैंड करोगे जब इनहेल करोगे. ट्राई टू ब्रीथ. एक्सहेल. कैन यू फील योर रिब केज कमिंग आउट एंड गोइंग बैक? Are you guys feeling it? That is how you are expanding your lungs right and left side. ये लंबाई दे रहे हो तुम लंग्स को जो आज तक नहीं दी हमने. आओ ट्राई करो. एक्सपैंड, एक्सहेल. इनहेल, एक्सपैंड, एक्सहेल. इनहेल, एक्सपैंड, एक्सहेल. इस पूरे दौरान फोकस करो तुम्हारा पेट काम नहीं कर रहा होगा. नहीं कर रहा काम, सिर्फ ये एक्सपेंशन हो रहा है, सिर्फ ऐसे फीलिंग कर रही हूं मैं लंग्स में. तुमने लंबा करना सीख लिया, लंग्स को फैलाना सीख लिया. अभी ये वाला लेंथ देंगे लंग्स को. कीप योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट. ये तो हमें आता है. चेस्ट को एक्सपैंड करना. इनहेल, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट. इनहेल, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट. इनहेल, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट. एज आई कैन सी यू ऑल आर सो ग्रोन अप. आप लोग इमेजिन कर सकते हो मैंने लेंग्स को लेंथ भी किया है, ब्रॉड भी किया है और सामने से हाइट भी इंक्रीज की है. अगर आप ऐसे एक ही सांस में इन तीनों को कंबाइन कर लोगे तो क्या बढ़िया सांस आएगी ना लंग्स को. दे विल फील सो हैप्पी. शेल वी ट्राई? 1-2 काउंट में यू विल एक्सपैंड योर स्टमक फर्स्ट. 3-4 काउंट में एक्सपैंड योर रिब केज. 5 काउंट में योर चेस्ट. सो वी विल गो 1, 2, 3, 4, 5. एक ही इनहेलेशन में. वॉच मी. सिर्फ एक ही इनहेलेशन में. हैंड कॉन्ट्रैक्ट. मैंने पहले पेट क्यों फुलाया? व्हाई नॉट माई रिब केज फर्स्ट? उसकी तो आदत नहीं है, उसको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए. सोचो तुम क्यों मैंने अपना पेट पहले फुलाया? व्हाई नॉट माई रिब केज? थिंक. साइंस के स्टूडेंट्स हो, सोचो. साइंस के स्टूडेंट्स हो ना? सोचो क्यों मैंने पहले पेट फुलवाया? व्हाई नॉट रिब केज? सिर्फ मैं ही बोलने नहीं आई हूं यहाँ पे. बताओ. See, I have this way of talking. मैं दोनों साइड रखती हूँ. So don't feel I don't keep it too much high professional or too much very friendly. तो बताओ कैसा क्यों तुम्हें क्या लगता है? अगर आप नहीं बोलना चाहते मैं बताऊं? मैं बता दूं? See, why? बोरा है या कोई बैग है. बैग होते हैं लंबे वाले. जब उसमें तुम फिलिंग करते हो, सामान भरते हो, सामान सबसे पहले नीचे घुसाते हो या साइड में पैकिंग करते हो? सबसे नीचे घुसाते हैं ना, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सामान घुसा पाए. मान्यता इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. हाँ बच्चे, पूरा पहले सामान नीचे रखते हैं ना, फिर ऊपर सामान रखते हैं और पूरी पैकिंग फुल हो जाती है. अगर नीचे का स्पेस खाली छोड़ देंगे वो तो खाली रह जाएगा. दैट इज वाई सबसे पहले स्टमक फिल इन करो, फिर रिब केज, फिर चेस्ट. अगर पहली साइड वाली अपना लंग्स भर लोगे, नीचे तक हवा नहीं जाती, ऑक्सीजन नीचे तक नहीं जाएगी. कमिंग टू द टेक्निकल वर्ड्स. इफ पूरा ऑक्सीजन. आइए अब हम ट्राई करेंगे काउंट्स के साथ. एवरीबॉडी लेट्स ट्राई. दिस विल बी डिफिकल्ट बट यू विल ग्रैब इट. हाथ ट्राई कर लो, अपना हाथ रख लो जिससे फील कर पाओ. सो 1-2 में स्टमक, 3-4 में योर रिब केज, 5 में योर चेस्ट. एवरीबॉडी टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट. Inhale, stomach, ribcage, chest. Exhale, contract. Inhale, stomach expand, ribcage expand, chest, contract.
Now everybody close your eyes and feel it. आंख बंद करके feel करो. अब करो. Everybody inhale, stomach, rib cage, chest, exhale, contract. Inhale, stomach, rib cage, chest, exhale, contract. आंखें बंद करो, ज्यादा महसूस करोगे. Inhale, stomach, rib cage, chest, exhale, contract. Your lungs are very happy today. Inhale, stomach, rib cage, chest, exhale, contract. Beautiful. Now open your eyes and tell me, did you felt the difference of breathing deeply? गहरी सांस ले पाए? इसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं. दिस इज योगिक ब्रीदिंग. ये मुझे कैसे पता? योगा में आके पता है. आपको कैसे पता? मुझसे जुड़ने के बाद पता है. आप ये आगे ले जाओगे अपनी फैमिली के साथ. अब इसको आप कभी भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. नाउ आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू क्लोज योर आईज एंड यू विल नॉट ओपन इट अंटिल आई विल से. चलेगा? यू विल गाइस फॉलो इट. आंख बंद रखना, मेरे साथ जुड़े रहना, मुझ पे बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना. आई विल मेक योर आईज ओपन, डोंट वरी. मैं भाग नहीं जाऊंगी यहाँ से. ठीक है. सो क्लोज योर आईज एवरीवन. सिट स्ट्रेट, बटक स्प्लिट करके. स्प्लिट योर बटक्स. सिट बोन्स को प्रेस करो मैट पे. स्पाइन सीधी करो. चेस्ट लिफ्ट करो. शोल्डर ब्लेड्स बैक करो. एल्बो नियर योर एब्डोमेन एंड हैंड्स रिलैक्सिंग ऑन योर लेग्स वेरी जेंटली एंड सॉफ्टली. Connect to yourself. I want you all to keep your eyes closed and bring your focus, attention to your breath. सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देंगे. Don't try to control it. सिर्फ ये देखो मैं कब ब्रीद इन कर रहा हूं या कर रही हूं और कब एक्सेल कर रहा हूं या कर रही हूं. Don't control it. Just watch your breath. Just like you are a surveillance camera or something. और सिर्फ उसे वॉच करो कब आप इनहेल कर रहे हो, कब आप एक्सेल कर रहे हो. Keep your facial muscles relaxed. अपनी आंखों को रिलैक्स रखो. आई बॉल्स को ज्यादा हिलाओ मत. एक प्लेस पे रखो. Now keep your attention to your breath. Just watch how you are inhaling, how you are exhaling. Arjun, try to connect to my voice and try to connect to your breath. Now everybody take a long deep breath. Yogic breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, contract. Inhale, expand your lungs. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, contract. Inhale, expand your lungs. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, contract. Now you will keep your eyes closed and connect to my voice. Keep your attention on your breath. I want you all to bring your attention in front of your nose. जहाँ आपकी nose की starting होती है, nostril होते हैं. Bring your attention there and stand like a guard there. अब वहाँ पे देखो कब आप inhale कर रहे हो, कब exhale कर रहे हो. आपको वहां बस खड़े होना है गार्ड की तरह नाक की स्टार्टिंग में और देखना है आप किस फर्स्ट स्टेप से सांस अंदर लेते हो और कब एक्सेल कर रहे हो. एक एक सांस को आप देखोगे, कोई भी बच के ना जाने पाए. कीप ट्रैकिंग दोज ब्रेथ्स in the starting of your nose, when they are entering, when they are getting out of your body. Keep your attention there. We all are practicing Anapanasati, a technique for meditation, where your attention is in starting of your nose and you are watching your breath going inside your body and coming out. Keep your eyes relaxed, eyeballs relaxed, facial muscles relaxed. Keep your jaw relaxed and keep a track on your breath. When you are inhaling, when you are exhaling. I'm right here with you. Keep practicing. Keep your eyebrows relaxed. Keep your face relaxed. Now bring your attention to my voice. Keep your eyes closed. अब धीरे धीरे आपकी attention मेरी आवाज पे आ गया है.
आप आंखें बंद रखेंगे. अब बस आपका टेंशन मेरी आवाज पर है. I want you to scan your body from head to toe. सबसे पहले हम अपने बालों को इमेजिन करेंगे, स्कैन करेंगे. We will try to look at our hair. How do they look? अब ये कैसे बने हुए हैं, कैसे बांधे हुए हैं. Now bring your attention to your forehead. Just try to imagine how your forehead look. Bring your attention down to your eyebrows, your eyes, your nose, your cheeks, your lips, your chin. Bring your attention to your right ear and your left ear. Now watch your whole face relaxing. You can watch your whole face, you have that power. Now bring your attention to your neck. Look at your shoulders, how relaxed they are. Look at your chest, your abdomen, your back spine, your right arm resting, relaxing, your left arm. Now watch your thighs, your calves, and your toes. Now watch your whole body sitting, relaxing. You are the powerful human who can watch yourself even with your eyes closed. Be with my voice and be with your attention and awareness. Bring your awareness to your breath again. Take a long deep breath. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Contract. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Contract. Keep your eyes closed. We will be chanting Om. आंखें बंद रखिए, मेरी आवाज से जुड़े रहें, आपको सब पता चलता रहेगा. हम ओम का चैंट करेंगे हर सांस छोड़ने के साथ. मैं एक बार सुनाती हूँ. मैंने एक बार सांस भरी, अब मैं छोड़ूंगी तो ओम का उच्चारण करूंगी. और आप जब भी ओम का उच्चारण करेंगे, आप उस वाइब्रेशन को अपने गले में महसूस करेंगे. योर वॉइस, योर अटेंशन, योर ईयर्स. Everybody inhale and chant. Inhale, chant. One more time, inhale. Chant. Shanti, Shanti, Shanti Om. Bring your hands together, keep your eyes closed. अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी हथेलियों को रब करेंगे. Create the energy, create the एनर्जी जनरसली. पूरा जो आपने एनर्जी क्रिएट किया है, हम लोगों ने एनर्जी शेयर किया है, उस एनर्जी के साथ पूरा गर्म करिए. अपने हाथों को पूरा रब करिए. कीप इट ऑन योर आईज, फील द वार्मथ, गिव योर आईज दैट वार्मथ. गरम गरम अपने आंखों को महसूस कराओ उन हाथों से, और गर्म करो और महसूस कराओ. प्रिपेयर योर आईज टू कम टू द वर्ल्ड. प्रिपेयर योर आईज, उन्हें गर्माहट दो. नाउ टेक दैट एनर्जी थ्रू आउट योर बॉडी, थ्रू आउट योर फेस विद योर हैंड्स. Take that energy throughout your body. Now look at your hands first. सबसे पहले आप अपने हाथों को देखेंगे. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को देखेंगे. These are your beautiful hands, my friends. They help you a lot in your daily life. So you have to appreciate your hands. Thank you, hands. This is not a joke or something, but yes, you have to appreciate your hands. Thank you, everyone. That's all from my side. This was my session with you.
You all were very good. स्पेशली गौरव आपने बहुत ध्यान से किया है, अपूर्वा आपने बहुत ध्यान से किया है. आई वाज रितिका, मिताली, खुशी बड़ा आप ध्यान से कर रहे थे, विराज, अर्जुन, मान्यता शी वाज आल्सो ट्राइंग. अर्जुन थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे. शुभम वाज आल्सो डूइंग. आप लोग मुझे अभी आप लोग ही दिख रहे हो तो मैं आपके नाम ले रही हूँ. इफ आई एम मिसिंग समबडी सो सॉरी फॉर दैट. या थैंक यू सो मच. आई होप यू हैड अ गुड सेशन. डिड यू फेल्ट रिलैक्सेशन? लगा थोड़ा आराम महसूस कर पाए, खुद से कनेक्ट कर पाए? Yeah, right. Okay. Any questions? Yes, ma'am. Actually, while I was doing this, I felt a certain shock in my body. So, is it normal or is it anything else? Was that shock something कि आपको एकदम से ठंडक लगी? No, ma'am. Like a strike in head. ओम चैंटिंग के टाइम? नहीं, ma'am. उससे पहले. While we were looking at feeling our body that time. Normal है गौरव, नॉर्मल है. You must have done it first time. इतना ध्यान अपने आप को पहली बार दिया होगा तुमने. ऐसा प्रैक्टिस तुमने पहले किया है कभी? Yes, ma'am. मैं पहले किया है थोड़ा, बट बीच में छूट गया था. जब आप बहुत दिनों बाद कोई चीज करते हो ना, आपको थोड़ा सा लग सकता है प्रेशर. If that was for a very little time, that is fine. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. It's just कि वो एक्टिवेट हुआ है थोड़ी देर लिए. अब आप इतनी देर अपनी ब्रेन को काम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एक्टिवेशन थोड़ा सा होगा, कोई दिक्कत नहीं. Any other questions relating to yoga? Anything you felt something? If you want to know more about it. Geeta ma'am, I have one question. Yes. Hello, ma'am. Hi. How can we connect you? Okay, you can connect to me anyhow. Like host can share my number if you want to, or I would like to share one thing. I am a regular practitioner for 76 days. I have completed my 76th day of regular practice yesterday. I will be doing it 77th time today. समझ रहे हो ना, सैटरडे संडे पे मिस नहीं किया मैंने. तो लगातार प्रैक्टिस के मेरे सेशंस चल रहे हैं. एंड आई अपलोड दैट डेली प्रैक्टिस ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल विच इज कथा योग. You can have my contact, my details. You can contact to me on my classes if you want to, know more about yoga. You can connect to me, know more about my classes if you want to know. Host से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, or you can connect me on Instagram. Katha Yog is the handle, or my name Sapalta Singh if you want to get connected. Any other question? Okay, thank you, ma'am. Can you share your profile link in chat box? Oh, right now. It would be difficult for me, but yes, I can try it. कैसे करते हैं भाई? ये मैं तो टेक्निकल में ज्यादा अच्छी हूँ नहीं. अगर आप प्रोफाइल भी बता देते हो मैम तो भी हम स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं और बाद में फॉलो कर लेंगे आपको. अच्छा. थैंक यू मैम. Okay, thank you. Any other question? नो क्वेश्चंस. इतने सेटिस्फाइड हो आप लोग? अरे वाह, क्या बात है. सेशन सफल रहा. हाँ खुशी. How to relax our eye muscles? आई मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है? Yes, ma'am. इसमें कोई, तुम सोती हो तो क्या होता है तुम्हारी आंखों के साथ, ये बताओ. Ma'am, in regular basis, I have a lot of pain in my muscles, in eye muscles. That's why I'm asking. And while sleeping, I have tears in my eyes. That's why. तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल यूज कर रही हो क्या चीजें? फोन, डिजिटल चीजें, टीवी वॉचिंग? देखो झूठ मत बोलना यहाँ पे. No, ma'am, not that much. नॉट यूज. और स्पेक्स लगे हुए हैं तुम्हें? Yes, ma'am. हाँ, स्पेक्स वुड बी अ रीजन. देखो, आई कैन सजेस्ट यू आई एक्सरसाइज कर सकते हो आप. आई एक्सरसाइज इज जस्ट सिटिंग स्ट्रेट. अपना हेड नॉर्मल रखो, आई स्टिल रखो. यू हैव टू मूव योर आई बॉल्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, फ्रॉम राइट, एक्सट्रीम राइट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम अप टू एक्सट्रीम डाउन, एंड क्रिएटिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स विद योर आई बॉल्स. तो सिर्फ आंखों को इतना स्टिमुलेट करो, इतना उसको आदत दिलाओ हर डायरेक्शन की, एंड देन क्लोज योर आइज. क्लोज योर आइज. उस प्रैक्टिस के बाद एकदम से क्लोज योर आइज एंड गिव इट रेस्ट. फिर उसके बाद कभी आप अपने आर्म्स वार्म करके, अपनी आंखों पे गर्माहट देके,
ये वाला हाथ ये गर्म होता है हमारा, फिंगर्स गर्म नहीं होती इतनी, ये गर्म होता है। इसको गर्म करके इसको आंखों पे रख के ब्लिंक योर आइज देन ओपन योर आइज। ठीक, ये नहीं होता इसके बाद भी यू फेस दिक्कत, सो आई वुड सजेस्ट यू डॉक्टर। ओके, इस प्रैक्टिस को पहले दिन में 2 बार करके देख, फिर बताना। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? पूछ लो आज, फिर सोचते रहोगे पूछना है कि नहीं पूछना। एनी फैकल्टी मेंबर्स, एनी टीचर्स यू कैन आस्क। मैम, यस am I audible? यस हर्ष, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। ये जो बताया कि जो लोअर बैक की प्रॉब्लम मुझे भी होती है, एक्चुअली माय बैक हर्ट्स अ लॉट व्हेन आई सिट ऑन द चेयर, तो कैन यू सजेस्ट मी हाउ टू सिट? क्योंकि एक्चुअली बैक पे सपोर्ट लेना चाहिए चेयर का या नहीं लेना चाहिए बैठते समय? अगर तुम्हें सपोर्ट लेना है तो लोअर बैक पे सपोर्ट लोगे। तो मैम, चेयर का जो बैक होता है उसका सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चेयर का सपोर्ट लेना है तो अपर बैक पे नहीं लोगे, लोअर बैक पे लोगे सिर्फ। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? वाई आई एम सेइंग दिस? इफ यू हैव टाइम आई कैन शो यू। ये देखो, ये मेरा वॉल है, दिख रहा है तुम्हें वॉल मेरा? Yes, दिख रहा है? आई एम कीपिंग अ। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुम ये सपोर्ट लोगे तो ये कमर यहाँ पे गैप आ जाएगा। आई एम आस्किंग यू टू टच योर हिप्स, एकदम पीछे स्प्लिट करो और लोअर बैक पे सपोर्ट दो। अपर बैक ठीक है, फाइन, लोअर बैक पे सपोर्ट दो। फिर क्या एक्शन हो रहा है जो हमने अभी सीखा था? बटक्स रोल डाउन हो रहे हैं, ये नेवल टक हो रही है, तो स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। यू विल फील गुड हर्ष। अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है, अगर नीचे बैठने में दिक्कत होती है, यूज पिलो अंडरनीथ योर बटक्स, यूज समथिंग हाइटेड। ये हाइट, यू कैन यूज दीज ब्रिक्स ऑल्सो। ये नीचे रखो, इस पे बैठो, ऐसे बैठो, कमर सीधी रखो, ये बटक्स को स्प्रेड करेंगे। ये भी नहीं होता, पिलोज रखो, यूज दीज थिंग्स। इसके बाद भी दिक्कत होती है कॉन्टैक्ट में, डॉक्टर ने, बट आई कैन हेल्प आउट यू विथ सम ऑफ योर पोजिशंस। ये सब लाइफस्टाइल का इश्यू है, कुछ नहीं है हर्ष, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी, इसके बाद भी होती है दिक्कत, तब हो सकता है हाँ कहीं कुछ बैक में है, इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। अभी पहले ये करके देखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Is it okay? अब हो गया? Everybody? Very good? I think it's host. Can you come up and help? Yeah, okay. Can we have one group picture? Yes, sure. ओके गाइस, सब कैमरा ऑन कर लो। अब तो मैम के साथ सिर्फ एक सेल्फी लेनी है अच्छी सी। If you had a good session, smile everyone. Ma'am, it was amazing. Thank you. हमें प्लीज बता देना मैं चलो, इसने हमें हंसा तो दिया। ओके, इज इट डन? किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। Okay, I guess no one have to ask anything. Okay, you can share my, ID Yeah. or hand name, because I don't know how to do it. Your chat box मुझको नहीं दिख रहा I will है। start. Thank you for the really awesome poses and the perfect pranayam session, which really flexible our body, also which purify our organs and internal system. Now I would like to present a short video of yoga poses by our NSS volunteers. So please, Viraj, can you present?
Thank you so Lastly, behalf of all the NSS team, I would like to thank our dignitaries, Principal Sir, our HOD Sir, teachers and the speaker, also students for giving us the valuable time. And I would like to thank Professor Sumit Mali Sir and Professor Rajkumar Sir for always guiding us and making this International Yoga Day very delightful. Also, I'm sharing the screen of ma'am Instagram ID so that you can contact her. Is it visible now? Oh, yes, it's visible. Yeah, this is ma'am's Katha Yoga page, as ma'am is trained in both Katha and Yoga. And you can see this correct and wrong poses. And this is her main page. Okay. Whoever interested to taking online classes from ma'am, or you can go on that page and give feedback about the today's session, and interested student can contact her. Thank you and have the wonderful day. I request non-NSS volunteers can leave and rest. Please stay.